بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں میرے سگے پھپھا جان کی کہانی ہے اور مجھے میرے ابو نے سنائی ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، ابو کی زبانی ہی سنیے۔ یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی کی وجہ سے گھر میں خوشیوں کی آمد تھی، سب بہت خوش تھے۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری بہن پریشان رہنے لگی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ بہنوئی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ پہلے تو ہم نے اسے معمولی سمجھا، لیکن جب مسئلہ زیادہ بڑھا تو ہم نے انہیں بہت جگہوں پر دکھایا، ان کے مختلف ٹیسٹ بھی کروائے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ انہیں کسی روحانی علم والے کے پاس لے جائیں، اس کا مسئلہ روحانی علاج میں ہے۔ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن بہنوئی کا مرض تھا کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا مرض تھا جو ڈاکٹرز کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ دوا کھانے کے باوجود بھی بہنوئی دن بدن سوکھتا جا رہا تھا۔ یہ سب ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میری بہن جو بھی نئی نویلی ہی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی، بیچاری ہنسنا تک بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ویرانی سی چھا کر رہ گئی۔ ہم سب اسے سمجھاتے، تسلی دیتے کہ تمہارا شوہر ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ رو دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے شوہر کا علاج اب مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر میرا بہنوئی ایک ہی اکلوتا تھا، اس کا اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ بھی حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اب ایک شادی شدہ بہن اور میرا بہنوئی رہ گیا تھا۔ ان کے ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ چچا بڑے ہی کاروباری قسم کے آدمی تھے۔ بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے ان کا کاروبار بڑے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ بہنوئی شدید بیمار ہوتا گیا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تو میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے کہا جب تک میرے بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے انہیں اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سبھی نے ہمیں مایوس کیا، کہتے کہ مرض کی تشخیص ہی ممکن نہیں ہے تو علاج کیسے کریں۔ اب ہم لوگوں نے حالات کے دھارے پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن کو میرے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ گزر گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ہم بہت سے عالموں کو دکھا چکے۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ پرانے والے بس اڈے کے پاس پیر صاحب کا آستانہ ہے، تم وہاں جا کر دیکھو، وہ بارش آدمی ہیں، ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میں مقررہ دن پر پیر صاحب کے آستانے چلا گیا۔ بس اڈے سے بھی مختلف لوگ ان کے آستانے میں جمع ہوتے اور ان سے مختلف حل وغیرہ پوچھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اچھا وظیفہ بتا دیتے تھے اور یوں ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ میں بھی ان کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرا مسئلہ سمجھ لیا، لیکن جو اگلی بات کہی وہ سن کر میں اور بھی زیادہ مایوس ہو گیا۔ کہنے لگے بیٹے میری بات کا برا نہیں مانا، لیکن ہر شخص کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں تمہارے بہنوئی پر جو عمل کیا گیا ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس عمل کے پورے ہونے پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب آخری مرحلے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تم درود شریف کا ورد کرتے رہو اور اپنے اللہ سے مدد مانگتے رہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی راہ دکھا دے۔ میرے پاس اس بات کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سوچا کہ اب آخری حل یہی بچا ہے، درود شریف کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس بھی اس مرض کا علاج نہیں تھا۔ خیر میرے دن رات انگاروں پر گزر رہے تھے۔ ساری رات میں جاگ کر ٹہلتا رہتا اور درود شریف کا ورد کرتا رہتا۔ مجھے یہ پریشانی دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ ایک روز میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ مجھے چائے کی طلب ہوئی۔ میں چائے کے کھوکے پر ہی چلا گیا۔ وہاں پر بھی چائے سے زیادہ میرا دھیان بہنوئی کی بیماری کی طرف تھا۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔
बैरा उसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज़ दी और कहा, मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया, तुम मुझे दूध लेकर आ रहे हो। बैरे ने बड़ी हैरत से देखा। जग में देखा तो उसमें वाकई दूध था। बैरे ने कहा, पता नहीं साहिब, मैं तो पानी ही लेकर आया था। चलिए माफ़ कर दें, मैं दोबारा पानी लेकर आता हूँ। जैसे उसने जग उठाया तो उसमें पानी था। उसने कहा, साहिब आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। उसने जग वापस टेबल पर रखा। इस वाक़े की वजह से मेरी तवज्जो सारी की सारी उन्हीं की तरफ मबजूल हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बैरे के हाथों में था तो उसमें पानी था, लेकिन जैसे उस शख्स ने उस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। यह सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मैंने पहली बार ऐसा होते देखा था। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बैरा जा चुका था। मेरे कानों में उस शख्स की आवाज़ आई, क्या बात है बेटे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने देखा कि वो बहुत ही महज़िब और ख़ानदानी लग रहे थे। कोई जादूगर या जाली आमिल बिल्कुल भी नहीं थे। दाढ़ी थी, शलवार कमीज़ भी पहनी हुई थी। मैं चुप रहा। मुझसे कहने लगे, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो बेटे, मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ जाए। मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। वो बूढ़ा बुजुर्ग बड़े तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो उसने कहा कि ठीक है, इसका इलाज मुमकिन है, क्या तुम मुझे अभी अपने बहनोई को दिखा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार किसी ने मुस्बत जवाब दिया था। मैंने कहा, क्यों नहीं, वो मेरे घर पर ही है। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द आप उनका इलाज शुरू कर दें। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो बुज़ुर्ग मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी। इन्होंने कहा कि चलो। मैं उन्हें लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी, बहन को दूसरे कमरे में भेज दिया। आमिल साहिब को अंदर बुला लिया। इन्होंने मेरे बहनोई को देखा। उनकी आंखों में गहरी उदासी और फिक्र थी। ऐन उसी वक्त कमरे की बिजली चली गई। कमरे में यकायक अंधेरा हो गया। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बुज़ुर्ग के चेहरे से नन्ही नन्ही रोशनियां फूट रही थीं। ऐसे लग रहा था कि नूर का मंबा है जो मेरे सामने खड़ा है। इस बात से मुतासिर हुए बिना मैं नहीं रह सका। खैर, थोड़ी देर के बाद बिजली दोबारा आ गई। वो अभी भी हिसाब किताब में मसरूफ़ थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी। इन्होंने कहा, अंगीठी पर सरसों का तेल गर्म करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तामील की। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करने रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो इन्होंने कुछ पढ़ते हुए ताज़ा वज़ू किया। फिर इन्होंने इस खोलते हुए तेल में अपने पाँव डाल दिए। ये देखकर मैं तो काम कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते तेल में उंगली का पूर भी नहीं डाल सकता था। इन्होंने अपना पैर डाल दिया। थोड़ी सी छन मन की आवाज़ पैदा हुई। फिर चंद लम्हों के बाद इन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। उनके पैर बिल्कुल सही सलामत थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। बहरहाल पैर साफ करने के बाद मुझसे गोया हुए, बरखुरदार बाहर आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। मैं उनके पीछे लपका। जी शाह साहब, अब क्या हुक्म है। देखो मियाँ, तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मियाद ख़त्म होने वाली है। यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। यानी आपका मतलब है कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है? लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ़ है? मैं दुखी लहजे में बोला। देखो मियाँ, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज़ है, मर्द है, वही तुम्हारे बहनोई की जान लेने के दर पे है। अब ये तुम्हें तो मालूम ही होगा कि इसके मरने से किसको फ़ायदा है, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ़ एक बेवा बहन है, जिसकी 2 बेटियां हैं। इनकी कफ़ालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। कोई भाई या कज़न भी नहीं है। हाँ, एक चचा हैं जो मेरे बहनोई के बराबर वाले घर में रहते हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं। आजकल बहनोई का कारोबार भी वही देख रहे हैं। मैंने तफसील बताई तो वो कहने लगे, बरखुरदार, नेकी और बदी को कौन देखता है। आजकल दौलत इतनी बड़ी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और तुम चचा की बात करते हो। बकौल तुम्हारे ले दे के एक ही भांजा है उनका, जो उनके भाई की जायदाद का वारिस है। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये ज़िंदा रहे और इस जायदाद पर ये ऐश करे? ये सब तो वो हथियाना चाहते होंगे ना।
फिर भी दौलत के लिए कोई इतना कुछ कर सकता है कि अपने खून की जान ही लेना चाहे। मेरे हलक से ये बात उतर नहीं रही थी, मगर क्या किया जाता, जो बात सच थी वो सामने थी। इसे छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फिलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और ख़ानदानी आमिल हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये इल्म बख्शा है जो हम सिर्फ ज़रूरत के तहत ही 1 या 2 से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मामूल की मौत यकीनी होती है। तुम्हारे बहनोई की मयार अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी आमिल इस काम को हाथ में नहीं लेगा। बहुत सख्त अमल है, अब बताओ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदारा शाह साहब, अल्लाह के बाद आप ही का सहारा है। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए। मेरी बहन का सुहाग गुजरने से बचा लीजिए। शिद्दत गम से मेरे आंसू रवा हो गए। हम ज़रूर करेंगे इलाज। हम आए ही इसीलिए हैं। लेकिन क्या तुम इस इल्म की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकोगे? इन्होंने पूछा। आप बताइए, मैं कैसे भी करके आपको दे दूँगा। वैसे तो इस काम के 10,000 रुपये बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 देना कहो मंजूर। उस वक्त 6,000 बहुत बड़ी रकम थी। हर चंद के मैं बहुत पैसा बहनोई पर बर्बाद कर चुका था, लेकिन मेरा अपना कारोबार था और फिर मैं हर कीमत पर अपनी बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था। सो मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। तो फिर सुनो, हमने जो तेल तैयार किया है, आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे कि मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी होगी। शाह साहब, परसों आप खुद आएंगे या? इन्होंने मेरी बात काट दी। नहीं, हम खुद आएंगे, अल्लाह निगहबान। वो चले गए। मेरे घर आकर सारी ख़वातीन को इस सूरत हाल से आगाह किया, तसल्ली दी कि अब दूल्हा भाई इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर खुशी की रमक दौड़ गई। मेरे अंदर भी इत्मीनान सा उतरता चला गया। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया। वो बेसुध पड़े थे। मुझे उनकी ये हालत देखकर बड़ा अफसोस हुआ। सिर्फ चंद माह में उनकी हालत क्या से क्या हो गई थी। क्या खूनी रिश्ते भी ऐसा कर सकते हैं? कोई दौलत के लिए अपने प्यारे का भी दुश्मन बन सकता है। अम्मी अक्सर कहा करती थीं कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खून सफ़ेद नहीं हो गए, स्याह हो गए हैं। तभी तो मोहब्बत, मुरव्वत, एहसास और अपनायत का कोई रंग असरअंदाज नहीं होता। यही स्याही हमारी ज़िंदगियों को तारीख से तारीख तर बना देती है और हम लोग बेहिस होते जाते हैं। बहरहाल अफसोस तो उन लोगों पर है जो जानते बूझते इस जहन्नुम में गिरते हैं। खैर, दरवाज़ा बंद करके मैंने दूल्हा भाई की मालिश की। मतवातर 3 रोज़ करता रहा। तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहब खुद ही आ गए। दोपहर का वक्त था। अस्सलामु अलैकुम, तशरीफ़ लाइए। वालेकुम सलाम। मैं उन्हें दूल्हा भाई के कमरे की तरफ ले गया। आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है? वो मुझसे गोया हुए। जी शाह साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। हमारी इजाज़त मिलते ही शाह साहब ने अपना अमल शुरू कर दिया। वो उसी कमरे के बाहर बैठे हुए थे जहाँ मेरे बहनोई आराम कर रहे थे। काफ़ी देर वो पढ़ाई करते रहे। उसके बाद आंखें बंद किए ज़मीन पर एक नक्शा खींचा। मुझे कहने लगे कि सहन के वस्त में से मिट्टी खोदना शुरू कर दो। अगरचे उनकी बात पर अमल करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अपने बहनोई के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। हमने सहन के दरमियान से मिट्टी खोदना शुरू कर दी। थोड़ी देर तक मिट्टी खोदते रहे, कुछ न मिला। फिर मिट्टी खोदते खोदते सख्त चीज़ पर आला लगा तो पता चला कि नीचे वाकई एक हांडी दफन थी। अल्लामा साहिब के कहने पर हमने वो हांडी निकाली और उनके हवाले कर दी। वो हांडी लेकर बैठ गए। उस पर काफ़ी देर पढ़ाई करते रहे। हम लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। यकायक उस हांडी से खून के छींटे बाहर आने लगे और फिर अगले ही लम्हे 3 मोटे मोटे बिच्छू हांडी से निकलकर सहन की दीवारों पर चलते हुए गायब हो गए। ये देखकर हमारे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हमने सोचा नहीं था कि हमारे बहनोई पर कोई इतना ख़तरनाक अमल कर चुका है। फिर शाह साहब ने जलाल में आकर हांडी उलट दी। उसमें से गंदे कपड़े, खून और हड्डियों पर मुश्तमिल एक अजीब सा मजमुआ बरामद हुआ।
शाह साहब ने हमें वो सब पानी में बहाने का कहा। हांडी भी इन्होंने तोड़कर फेंक दी। हम सब लोग बाहर खड़े ये तमाशा देख रहे थे कि मेरी नज़र अपने बहनोई पर पड़ी, जो दरवाजे में अपने पाँव पर खड़े हैरत से हम सब की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर मारे खुशी के मेरा तो कोई ठिकाना न रहा। मैं दौड़कर उनके गले लग गया। वो भी हैरान परेशान खाली नज़रों से हमें देख रहे थे, जैसे न जाने वो कहीं गहरी नींद से उठे हों। बहनोई को मुकम्मल सेहतयाब होने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगा। इस 1 हफ़्ते में हमें बहुत कुछ मालूम हो गया कि बहनोई की बीमारी के पीछे आखिर किसका हाथ था। सच तो ये है कि मेरे चचा ने अपने भांजे की मौत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। आज मेरा बहनोई माशाअल्लाह 3 बच्चों का बाप है। उसके बेटे बड़े बड़े हो गए हैं, जबकि उनके चचा बड़ी बुरी हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अल्लाह ताला सबको सच्ची हिदायत दे और हम सबको हसद करने से बचाए। इस कहानी को सुनते हुए आपको कैसा लगा और इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।